Hi dear students, let's see this question that came in JEE Advanced Paper 1 Physics in the year 2018. The question is fairly simple from the topic of magnetism. It's a multiple choice correct question. Most of the students in India would have done this. लेकिन इस क्वेश्चन में एक assumption we will take जो कि IIT should have mentioned but उन्होंने mention नहीं किया. But फिर भी it's not a very big deal. So let's see what I'm talking about. First let's see कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है. एक्स वाई प्लेन में दो वायर रखे गए हैं प्लस आर और माइनस आर पे लॉन्ग वायर्स जेड एक्सिस के √3r कोऑर्डिनेट पे 0,0, √3r कोऑर्डिनेट पे जेड एक्सिस पे सेंटर मान के मतलब इस पॉइंट को अज्यूमिंग द सेंटर दिस इज अ सर्कुलर लूप आल्सो दैट वी हैव केप्ट द सर्कुलर लूप इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन. ठीक है. नाउ इट्स सेड दैट कि अगर करंट पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको प्लस एज्यूम करना है और नेगेटिव बाई डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे नेगेटिव करंट एज्यूम करना है. वी हैव टू टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन at अंडर सर्टेन कंडीशंस. तो पहले अपन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि एक्स वाई प्लेन हॉरिजॉन्टल है, बट यही अजम्पशन लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है. So this is the assumption I was talking about. XY plane horizontal है और Z axis vertical है. So let's see. Let's assume that this is our x axis. This is y axis, which is horizontal plane, and this is Z axis, right? This is Z, this is y, and this is x. Let me draw this like this as well. मतलब this is negative x axis. ठीक है. अब x equals to plus r पे एक wire है. So this is the wire which is at plus r. Okay, and this is the wire which is at minus r. Right. So this is the figure. Okay, and there is one circular loop which is at the coordinates 0,0, √3r. तो ये जो distance है √3r है. So I'm just writing √3r. The radius of this loop is r. Okay, although we will not need this. Now this is the origin. Let's call this O. So if you read the option 1, if I1 equals to I2, remember we will take current positive if it is going in plus y direction, and if we will take it negative if it is in going in negative y direction. So here they are saying if I1 equals to I2, then B cannot be 0 at origin. Now one more important thing is given in the question. This loop carries a constant current I in the clockwise direction as seen from the above of the loop. तो सॉरी, अगर हम ऊपर से देखें इस लूप को, अगर हम ऊपर से देखें, दैट मीन्स फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग फ्रॉम द टॉप, current is in the clockwise direction. That means if you look from the top, so basically here the current will be going inside, here it will be going towards the right, यहाँ पे current will be coming outside, that means it will be coming towards us, and here it will be going towards left. तो ये looking from the top current की direction ये है. Hence इसकी वजह से जो magnetic field generate होगी that will be going down. Can we say that? If you apply right hand rule, so if you curl your fingers along the clockwise direction, so thumb will be pointing down. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी वो दैट विल बी गोइंग डाउन. ऐसी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी बी ड्यू टू लूप. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप इस तरफ जाएगा. ठीक है. नाउ इफ यू रीड द ऑप्शन 1, इट्स इफ I1 इक्वल्स टू I2 देन B कैन नॉट बी 0 एट द ओरिजिन. अगर I1 I2 इक्वल हो गए, लेट अस से दोनों से I1 I2 इक्वल होने का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम. तो इफ वी अज्यूम बोथ ऑफ देम टू बी इन दिस डायरेक्शन, अगर मैं दोनों को इस डायरेक्शन में मान लूं, तो देखो इसकी वजह से राइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिन पे कैसी आएगी, ऊपर की तरफ आएगी. ठीक है, ऐसे. ठीक है, ऊपर की तरफ आएगी. और इसकी वजह से ये जो ये वाला वायर है, ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स जाएगी, है ना. मतलब लेफ्ट वायर की वजह से यू कैन सी बाय द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई द राइट हैंड रूल, तो ओरिजिन पे फील्ड डाउनवर्ड जाएगी और राइट वायर की वजह से अपवर्ड जाएगी. राइट. इसकी वजह से अपवर्ड्स और लेफ्ट वायर की वजह से डाउनवर्ड्स, और मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा बिकॉज करंट भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है. तो लेफ्ट और राइट वायर की फील्ड यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी. हेंस बी लूप की वैल्यू जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू जो सर्कल है वो अपन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. ठीक है, म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, बट हमें निकालने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बी लूप बचेगा वही नेट आंसर बचेगा, एंड विच इज नॉट जीरो. तो ये ऑप्शन सही है बिकॉज इट कैन नॉट बी जीरो, है ना. इफ I1 is greater than 0 and I2 is less than 0, then B can be 0 at origin. ठीक है, तो I1 मतलब ये वाला करंट, अगर, और I2 ये वाला करंट, मतलब I1 पॉजिटिव है इस तरफ जा रहा है और I2 नेगेटिव है, I2 की डायरेक्शन इस तरफ होगी. अब देखो I1 अगर पॉजिटिव है
तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जाएगी, अपवर्ड्स। और अगर I2 नेगेटिव है, तो I2 नेगेटिव है तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स जाएगी, है ना। राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर्ल करो तो तुम्हें दिखेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी ऐसी बनेंगी। फ्रॉम लुकिंग फ्रॉम दिस साइड इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज फील्ड लाइंस, और इसकी वजह से इट विल बी क्लॉकवाइज फील्ड लाइंस। दोनों इस पॉइंट पे ऊपर जा रहे होंगे और बी लूप नीचे आ रहा है। तो अब ऐसा तो हो ही सकता है बिल्कुल कि जो इसकी फील्ड है बी लूप की, जो यहाँ मैग्नीट्यूड क्रिएट हो रहा है, वो इन दोनों की फील्ड को कैंसिल कर जाए। ठीक है, जैसे कि ये करंट ऐसा हो कुछ, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ करंट हो कि ये इसको कैंसिल कर जाए। ठीक है, इसमें लूप में तो करंट की वैल्यू दी नहीं गई है हमें, कांस्टेंट करंट आई, मतलब आई है कुछ यहाँ पे करंट, है ना। तो ये आई और I1 I2 आइसोलेशन, जैसे इसकी फील्ड क्या लिखी जाएगी, इसकी फील्ड लिखी, I2 की फील्ड लिखी जाएगी म्यू नॉट आई 2/2 पाई आर। ठीक है, और सेम इसकी भी लिखी जाएगी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज I1 I2 सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो ये फील्ड ऊपर की तरफ आएगी। अब अगर ये फील्ड जो लूप की फील्ड है, ठीक है, वो ये बन जाए म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2, ये x हो गया, मतलब कि √3r स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो अब ये I2 में यहाँ से कोई रिलेशन आ जाएगा, अगर वो रिलेशन फॉलो हो गया तो फिर ये फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगी, हेंस ये सही है, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करें, इफ I1 इज लेस देन 0 I2 इज ग्रेटर देन 0 देन B कैन बी 0 एट ओरिजिन। I1 नेगेटिव I2 पॉजिटिव, अगर I1 नेगेटिव हो गया तो इसकी फील्ड डाउनवर्ड आ जाएगी, है ना, और I2 पॉजिटिव हो गया तो इसकी फील्ड, I2 पॉजिटिव मतलब उस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसकी फील्ड आ जाएगी डाउनवर्ड अगेन, क्योंकि ऐसे सर्कल बनेगा क्लॉकवाइज, इसका सर्कल क्लॉकवाइज बनेगा और इसका सर्कल एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, तो दोनों की फील्ड डाउनवर्ड आ जाएगी, और बी लूप भी डाउनवर्ड है, तो तीनों फील्ड डाउनवर्ड आ जाने से वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐड हो जाएंगी फील्ड्स, है ना, हेंस ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ठीक है, if I1 equals to I2 then z component of magnetic field at the center of the loop is minus mu naught I/2r। अगर I1 I2 इक्वल है, z component of the field at the center of the loop, इस बार center of the loop की बात हो रही है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे, तो अगर I1 I2 इक्वल है, लेट्स से दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, तो अगर दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसमें मैं दूसरा फिगर बना दूं थोड़ा साफ। ठीक है, तो जैसे कि ये ऐसा हो गया, ठीक है, ये y एक्सिस हो गई, ये x, ठीक है, और ये z, लेट्स से ये सेंटर ऑफ लूप है, ठीक है, सेंटर ऑफ लूप है। रिमेंबर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, जहाँ पे लूप बनेगा उसकी फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर मैं यहाँ पे एक वायर ऐसा रखा है और यहाँ पे एक वायर ऐसा रखा है, इन दोनों वायर की फील्ड इफ वी अज्यूम करंट बोथ ऑफ द पॉजिटिव करंट्स I1 I2, तो मैग्नीट्यूड वाइज करंट सेम हो गए, डायरेक्शन वाइज भी सेम हो गए, तो I1 की फील्ड कैसी होगी, देखो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, फील करो, ठीक है, ऐसा सर्कल बनेगा ना ऐसा, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, मतलब कि इस डायरेक्शन में आएगी ऐसी, है ना, ये आएगी B1, ठीक है, राइट, और B2 क्या आएगा, B2 अगेन, ये अगर अपन लाइन ड्रॉ करें, ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन, तो B2 इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो वो ऐसे आएगा, ठीक है, अगर तुम राइट हैंड क्रॉस लगाए तो ऐसे आएगा B2, राइट, हेंस यू कैन सी कि B1 B2 के दोनों के ये जो Z कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि B1 B2 मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे, तो B1 B2 क्योंकि करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो B1 B2 के अलोंग द Z कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, सिर्फ ये वाले X वाले कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो हाँ, Z कंपोनेंट खाली लूप की वजह से आएगा, ठीक है। सेम लॉजिक अपन तब बोल सकते हैं जब दोनों करंट इस तरफ हो, अगर दोनों करंट इस तरफ हो गए, लेट्स से, तो अगर इसमें करंट इस तरफ है, तो अब जो B1 आएगा, ठीक है, ऐसा सर्कल बनेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो जो B1 आएगा वो ऐसा आएगा, ठीक है, और B2 जो जाएगा, ये इसका भी जो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनेगा, तो B2 जो जाएगा वो ऐसा जाएगा, तो फिर से Z कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और इस बार X कंपोनेंट फिर से ऐड हो जाएंगे, तो इन एनी केस वी कैन से दैट सेंटर ऑफ द लूप पे जो Z कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे वायर्स के, और लूप की वजह से आएगा, और लूप की वजह से फील्ड जो होती है, मतलब वो सर्कल के सेंटर पे सर्कल की फील्ड होती है म्यू नॉट I/2r,
सिंस ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन. सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड. आई होप यू वुड हैव realized how we will solve this. तो ये ऑप्शन भी सही है. ठीक है. बट रिमेंबर वी हैव टेकन एन अजम्पशन कि एक्स वाई प्लेन हॉरिजॉन्टल है और ये जेड एक्सिस वर्टिकल है. ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ वर्टिकल है. ठीक है, जैसे कोई बच्चा ये भी बोल सकता था कि भाई एक्स वाई जेड एक्सिस हम चूज करते हैं. ठीक है, तो किसी बच्चे ने अगर ऐसे चूज कर लिया कि उसने एक्स एक्सिस ये वाली बोल दी जो स्क्रीन के अंदर जा रही है, वाई एक्सिस ये वाली बोल दी और जेड एक्सिस नीचे की तरफ ले ली. ठीक है, ये भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो हो रहा है, एक्स क्रॉस वाई जेड मिल रहा है. ठीक है, अब अगर तो वो बच्चा क्या करेगा, वो लूप यहाँ पे रखेगा. ठीक है, और अब फिर ऊपर से देखेगा तो वो बोलेगा कि क्लॉकवाइज आनी चाहिए फील्ड. तो इससे फिर अलग आंसर आ जाएगा. इससे योर ऑप्शंस आर नॉट गोइंग टू मैच. तो वही मैं कह रहा हूँ कि आईटी को assumption मतलब ये बोल देना चाहिए था कि पॉजिटिव जेड एक्सिस इज वर्टिकली अप, एक्सिस राइट वर्ड्स और वैसे करके बोल देना चाहिए था. तो वो एक जो मतलब एम्बिग्यूटी है वो नहीं रहती. ठीक है, बट उन्होंने नहीं बोला. एनीवे, दिस इज द assumption आई हैव मेंशनड एक्सप्लिसिटली क्या assumption हमने लिया है. So I hope you would have enjoyed the solution. That's all. Thank you.